I am Mandakini. This is my story. For centuries, I have been flowing from the Kedarnath over the Himalayas as a tributary of Ma Ganga, bringing life to the Rudraprayag district in Devbhumi, Uttarakhand. जय श्री केदार। मेरा नाम आनंद शुक्ला है। मैं यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हूँ सर। जो मंदाकिनी नदी आती है ये चोरबाड़ी ग्लेशियर से आती है। बहुत बड़ा ग्लेशियर क्षेत्र है चोरबाड़ी। इसके पीछे भी एक कारण है। चोर एक प्राकृतिक जड़ी होती है। चोरू जो साग वगैरह में डाला जाता है उसकी बाड़ी गढ़वाली शब्द है। बाड़ी का मतलब होता है खेत। तो चोरबाड़ी यानी उस एरिया पे वो जड़ी बूटी उगती है और ये बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है, हिम क्षेत्र है। बहुत बड़ा ग्लेशियर इसके अंदर है। तो ये वहाँ से निकल के आती है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये ग्रीन वैली दिख रही है, इसके जस्ट पीछे ही इसका ग्लेशियर है, उद्गम स्थल है। When the Pandavas sought forgiveness from Lord Shiva after the Mahabharat war, he was too angry to listen and disappeared. Bhim, one of the Pandavas, saw Shiva disguised as a bull near Guptkashi, a place still full of mystery. Bhim grabbed the bull by its tail and hind legs, but Shiva melted into the earth and reappeared in pieces, thus raising his hump in Kedarnath. My connection with Kedarnath is centuries old. When people began visiting Kedarnath, I was born as the Mandakini river. As time passed, my fame grew, and people from all across the world started enjoying my natural beauty. I represent the initial encounter with Kedarnath, a place overflowing with natural beauty. I flowed through lands filled with diverse trees, vibrant flowers, and plentiful fruits. My waters nurtured countless life forms and carried the purest spring water within me. Namaskaram. I'm Dr. Vikram Veer Bharti, Assistant Professor, Government Degree College, Rudraprayag, Higher Education, Uttarakhand. Besides, I am a mountaineer and an environment activist working in the mountains of Uttarakhand. Scenic beauty, pleasant weather. Let's go to Kedarnath. But with that comes a lot of responsibility for administration and for environment. And the problem at the moment we are facing, and we have to address that problem because we have to have that kind of vision which will promote sustainable tourism in Kedar Valley. And because of that imbalance, some way or the other way, we are actually having issues with the river Mandakini. But over the past 11 years, I have been losing my existence day by day due to the unplanned economic development by people. इन्वायरमेंट की उससे देखिए जो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, पूरे केदारनाथ में धाम में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो एग्रीगेट और उसका जो सेंट है वो सब यहाँ पे क्रेशर लगा हुआ है। मंदाकिनी नदी के उस पे क्रेशर लगा हुआ है जो ठीक चोरवाड़ी ग्लेशियर के मूल पे है। हम जो उसकी नेचुरल प्रोटेक्शन है चोरवाड़ी ग्लेशियर की उसको खोद रहे हैं। और आप कहीं से भी पता कर लेना, गवर्नमेंट के उसमें ये एग्रोक्रेट और जो सैंड है ये नीचे से आती है। यहाँ पे उनके उसमें क्या इसके पास ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जो क्रेशर चल रहा है, क्या इसके पास कोई सरकारी आदेश है जो इसको चलाने का परमिशन है? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे परमिशन है। लेकिन फिर और खोद भी ऐसी जगह रहे हैं कि एकदम ये भविष्य में केदारपुरी के लिए खतरा है सर। नमस्कार, मेरा नाम देव राघवेंद्र बद्री है और मैं विगत 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहा हूँ। वनों के संरक्षण में कहीं ना कहीं कमी आ गई है और जो हमारा मोनोकल्चर है, चीड़ के जंगल हैं, इन्होंने जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारे पारंपरिक जंगल थे, बांज, बुरांस, अयार और अन्य प्रजाति के, इनको जो है खत्म कर दिया है। यानी कि जो चीड़ है वो इनके अंदर घुस गया है। उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो जा रही है और फॉरेस्ट फायर होने से क्या हो रहा है कि जो उसके अगल बगल के स्रोत हैं उनका जो वाष्पीकरण जो दर है वो बढ़ गई है। यानी कि वहाँ पे जो वाष्पीकरण है पानी का वो बढ़ रहा है और वो स्रोत कहीं ना कहीं सूखने की कगार पे आ रहा है। Because of that imbalance, some way or the other way, we are actually having issues with the river Mandakini. So the problem is, there is something, the concept is about carrying capacity. And because of mass tourism,
which is a very new concept now, what you are facing in our mountains in Uttarakhand. Because initially it was not mass tourism, it was more a kind of, hill station concept. Initially it was pilgrim, then came the hill concept, and then came mass tourism concept. And now at the moment, the pilgrim itself turned into mass tourism. So the issue for the government, for the local administration, and even the stakeholders are the same, because if our actions are not responsible, definitely there will be environmental degradation, because we have limited capacity for that. For the last decade, about 35 lakh pilgrims visit Kedarnath each year. But with them comes a lot of waste. During the 6-month-long Kedarnath Yatra, more than 10,000 kilos of inorganic waste are dumped into me and my children, affecting us in the longer run. मैं रामचंद्र गोस्वामी, व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरीकुंड। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कचरे की 20,000 लोग पर डे जो है हमारी वहाँ पे यात्रा पे आते हैं। 20,000 लोग कम से कम टनों कचरा लाते हैं साथ में। सबसे खतरनाक कचरा तो प्लास्टिक का है। तो जो चाहे गौरीकुंड की समस्या हो, चाहे आप रुद्रप्रयाग से या ऋषिकेश से चल रहे हो, सबकी समस्या वो प्लास्टिक कचरा है। यात्री आता है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पिएगा और उसको ऐसे सड़क किनारे फेंक देगा। फिर सड़क किनारे से होते होते बिल्कुल हमारे तो वहाँ से नदी लगते हुए है, वो कचरा जो है फिर नदी में जाता है। फिर वो नदी में बहते बहते पता नहीं कहाँ तक चल जाता है। मैं गोविंद सिंह रावत, ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष गौरीकुंड केदारनाथ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रुद्रप्रयाग। और मेरा कहना यह है, जो तमाम पर्यावरणविद, तमाम जो समाज सेवी हैं, वो इस ओर ध्यान दे करके इस गंगा को शुद्ध करने के लिए पहल करें। क्या इसमें इतना पॉलिथीन जाना चाहिए? आप अपने कैमरे से देखिए, गौरीकुंड से ऊपर जो घोड़े खच्चरों की लीद है वो कहाँ जाती है? जो तमाम यात्री जो पीने का डिस्पोजल की बोतलें जो यूज़ करते हैं वो गंगा में तैरती हुई नज़र आ रही हैं। जो खाने पीने की जो वस्तु होती है, जो उनको खा पी के उसके बाद जो है कि नदी में फेंक लेते हैं। खाने के जो पत्तल हैं वो भी नदी में फेंके जाते हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण गौरीकुंड है। गौरीकुंड में जो स्वीपर हैं वो अपना कबाड़े का उठा करके सीधे सीधे उसको नदी में प्रवाहित करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। This illicit and insensitive human behavior has led to drying of 60% of water springs in Rudraprayag. One of these dried springs is Khankra Spring in Guptkashi, which is 7 kilometers long and flows between 5 villages. Sadly, instead of flowing with water, it is now covered with plastic waste. मेरा नाम बीना शुक्ला है। मैं गुप्तकाशी की मूल निवासी हूँ। मेरा घर यहाँ मंदिर मार्ग और हॉस्पिटल के बीच में है, जहाँ पर ये रोल गदेरा भी पड़ता है। सारे मार्केट का, मंदिर का सारा कूड़ा यहाँ गदेरे में पड़ता है। जब वो फुल भर जाता है उसमें, तो गदेरे में आग लगाते हैं। आग लगाने से सारा प्रदूषण फैलता है, वो घर के अंदर जाता है धुआं। बच्चे हैं यहाँ पे, 3-4 फैमिली हमारे घर में रहती है। अगल बगल सारे घर हैं। यात्रियों का आना जाना है, हॉस्पिटलों में मरीज का आना जाना है। सब लोग मुँह दबा के जाते हैं। बाजार का, होटलों का जो मटेरियल बच जाता है वो भी घर में गदेरे में डाल दिया जाता है। बंदर उसको उठा के घर के कमरे में अंदर घुसा देते, ला देते हैं। उसको भी सफाई हम ही को करनी पड़ती है। हम लोगों का जीना बहुत हराम हो गया। रुद्रप्रयाग में डीएम को भी दिया, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बावजूद भी हमने बोला तो उन्होंने बोला कूड़ा यहीं पड़ेगा। तो हमने कहा पड़ो, जब तुमने यहाँ डालना। सफाई कर्मी भी लाते हैं, ट्रॉली भर भर के लाते हैं। जब वो ट्रॉली डालते हैं तो हमारा जी ऐसा घबराता है, मन ऐसा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। जब वो ट्रॉली भर कर लाते हैं, हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है कि हमने कैसी जगहों पे हमने घर बना दिया, पैसे भी बर्बाद किया, अपना स्वास्थ्य भी हम दांव पे लगा रहे हैं। आए दिन हम बीमारी हो, डेंगू हो रहा, 7-8 बार मेरे को टाइफाइड ही हो चुका है। लेकिन यहाँ से हमको स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी हमको देहरादून जाना पड़ता है। मेरे नाम पुष्पा देवी से मैं नावा घूम कुछ हूँ और सेवा इंटरनेशनल में काम कर रहा हूँ। नर्मदा समूह की मैं अध्यक्ष हूँ। जरा गौर खेती काम हो, जरा पानी समस्या था हमारे खेत में। फूली खेत रोन से मैं करी 2002 बीठे में फूली खेत करी। बीच में कबारे आपदा है तो तब नहीं करी, कुछ साल था फिर कर रही। तो यह तो पानी नहीं, पानी समस्या बहुत खराब।
और बीन्स लगैन से भी सूखी गिन, भिंडी लगैन से भी सूखी गिन। पानी तो शायद माँ कम रही पर रे छींच अब तो यूं लोग सब उन लॉज में लगे सो पानी। नमस्कार, मैं रविंद्र नेगी ग्राम सभा भैंसारी थकलासी से बिलोंग करता हूं और ये खांगरा गदेरा है। इसमें 2009 तक तो पानी था, 9 तक, और उसके बाद ये तो धीरे धीरे प्लास्टिक और कूड़ा कचरे से ये पूरा डंप हो गया और पानी नीचे बैठ गया ज़मीन के अंदर धीरे धीरे ये। और जैसे बरसात में तेज़ आता है तो यहाँ भू कटाव ज़्यादा होता है। और हमारे यहाँ उससे पहले तो 9-10 में वहाँ सिंचाई तक करते थे पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की गुप्तकाशी का इस जगह की। और यहाँ जो पानी आता है, जो हमारे खेत हैं अपने, ये इधर उधर ये पानी फैल जाता है जब बरसात में, जब तेज बहाव आ जाता है इसका। न पानी होने से तो जो ये कचरा है यही जम गया है, इससे मच्छर महामारी फैल रही है ज़्यादा और बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। जो हमारे काश्तकार हैं खेतों में काम करते हैं वो खड़ा नहीं रह सकता है यहाँ पे इस कूड़े कचरे से। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अरुण अंथवाल है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और यहाँ पे सर ये रावल गदेरा है, इसमें जो है पहले पानी वगैरह बहता था, लेकिन अब जो है सभी लोगों ने यहाँ पे कबाड़ इकट्ठा करके यहाँ पे डालना शुरू कर दिया है, जिससे कि जब उस पर आग लगाई जाती है तो ये मेरे स्वास्थ्य को और अगल बगल जितने भी फैमिली हैं सभी के स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव पड़ रहा है इससे। और कई बार मेरे स्वयं कहने पे भी कोई मान नहीं रहा है कि यहाँ कबाड़ मत डालिए। इवन लोग मुझे धमकाने और मारने के लिए भी आ रहे हैं। इस तरह की मेरे साथ बड़ी अव्यवस्थाएं हो रही हैं और मैं किसी को कह नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि नालियों को साफ रखो, गदेरे में कबाड़ मत डालो। लेकिन लोग कभी कोई रात को डाल रहा है, कभी मैं सुबह आता हूँ तो सुबह भरा रहता है। कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है तो ये लोग सारे के सारे वो फंक्शन का कबाड़ गदेरे में डाल देते हैं। सुबह उठ के आता हूँ तो आग लगा देता है। तो सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। In the swirling chaos of existence, there are steadfast souls who anchor my being. Among them stands one whose support sustains my very essence. Today, allow me the pleasure to introduce you to my greatest benefactor. In the majestic Himalayan setting of Uttarakhand, Seva International shines as a symbol of hope and strength. For 10 years, they have been steadfast allies of humanity, showing power of service and empowerment. Their unwavering dedication lights the way to a brighter future for all, even in the toughest terrain. Since 2019, Seva International Uttarakhand has been tackling the disrupted natural water springs and the environmental challenges in Kedar Valley, Rudraprayag. This program offers training, capacity building, and promotion of volunteerism for environmental protection and waste disposal in the Kedar Valley. Additionally, the focus has been on behavior change initiatives at the community level, with the participation of people, especially women and adolescents, to revive the dead water springs of Kedarnath region. मेरा नमस्कार, मेरा नाम ललिता देवी है। मैं ग्राम नारायणकोटी से हूँ। हमारा जिला रुद्रप्रयाग है। मेरे समूह का नाम राजेश्वरी समूह है। मैं इस समूह की सदस्य हूँ और इस समूह से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। हम 6 साल से जुड़ रखे हैं। पहले तो बीज बूज मिलते थे, अब हमें 1 साल हो गया है कि कूड़ा इकट्ठा करो। शुरू में तो हमने नहीं किया, हमने कहा कि बोलने दो इन लोगों को, हमको क्या है, हम कूड़ा पकड़ते तभी गदेरे ले जाते। उसके बाद बबली देवी हमारे घर पे आई, उन्होंने हमें समझाया कि कूड़ा इस तरह से उठाओ। फिर बैरान जी भी आए, उन्होंने भी हमें समझाया कि कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना है। कुछ लोग नहीं मान रहे तो हम तो कर ही रहे हैं इस चीज़ को। तब बबली देवी ने हमें बताया कि गीला कूड़ा किस तरह से कहाँ रखना है, सूखा रखना है। तब इससे हमने, पहले तो हम गदेरे में, नाली में, सारी जगह डालते रहते थे, पर अब 3-4 महीने से हम रेगुलर इस काम को कर रहे हैं। फ़ायदा तो हुआ, जहाँ जहाँ वो थैले दिखते थे अब उतने कम हो गए हैं थैले दिखने। अब खुद मेरे घर में मेरे बच्चे भी अब कूड़ा उठाने बैठ गए हैं कि ये मम्मी का कूड़ा है, इसको रख देते हैं थैले में। Seva's Green Initiative is a magical playground
where children play and connect with nature. It is a dream to make the land green again and celebrate as water springs back to life. Through activities like making eco-bricks, exploring nature, and participating in Shramdan, Seva International nurtures our little nature guardians. Seva International sees Kuda not as worthless refuse, but as untapped potential. At their dry waste collection center, every discarded item becomes an opportunity for transformation. Seva breathes new life into what was overlooked, revealing its hidden value to the world. In my enchanting tale, a story of resilience and conservation unfolds. To protect my essence, I found unwavering support from Seva International team and the dedicated women farmers of Devbhoomi. Now, I extend my hand to you, inviting you to join this vibrant green journey with Seva International. Together, we can weave a future where nature thrives and communities flourish. Let's hear from the stakeholders of different domains as we work towards our common green goals. मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बेंजवाल प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज विद्यापीठ में हूँ। ये जो गदेरे से पानी बह रहा है, उस बह रहे पानी पे कभी किसी ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। हमारा ये मानना है कि उस पानी को भी हम संरक्षित करके वाटर फिल्टर प्लांट लगा के, बड़ा सा फिल्टर प्लांट लगा करके उस पानी को भी यूज कर सकते हैं, कि ताकि वो जो पानी है, वो जो जहरीला पानी है, वो नदी तक न जाए। उसको हम पहले ही कलेक्ट करके और वापस उसको यूज करने के लिए हम उसको फिल्टर के जरिए यूज कर सकते हैं। कि हमें मिश्रित वन लगाने पड़ेंगे। जो मोनोकल्चर है, उस मोनोकल्चर की जगह पर हमको मिश्रित प्रजाति के जंगल लगाने पड़ेंगे। ऐसे पेड़ों का रोपण करना पड़ेगा जो पानी को देने में सक्षम है, जैसे बांज है, बुरांस है, कापल है, अयार है, तुंगला है, गेंठी है, हेड़ा है। ये जो स्पीसीज हैं, ये जड़ों में पानी को संरक्षित रखते हैं और जब धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं, इससे हमारे जल स्रोत जिंदा रहते हैं। Let's have a kind of a code of conduct for the valley. Carry your own bottle. Bottle in a sense, your metal bottle, okay, carry it throughout, okay, and then carry your own tiffin. That can be done. I don't think that will have a kind of concern. These are very small action steps which can actually have that kind of, less polythene in a valley. I'll not make up false statements like no plastic, because at the moment the whole world is suffering from the plastics problem. What we can do, first of all, there has to be a kind of a protocol which involves youth in this scenario, and even we are there because I belongs to higher education, we can actually, kind of merge our students with the pilgrim centers, not full time, maybe for 10 days, kind of, apprentice or, kind of that kind of scenario, so that they can go to the area and check, kind of patrolling, policing. I'm not saying forceful policing, but kind of, policing which will kind of, they will be helpful. They will be kind of, they will be representing, the Kedar Valley, because they are the resident of the area, resident of the valley, so that they can actually facilitate the tourists, the pilgrims, even in times talk to them, even if they find them, deviating from their responsible behavior, they can actually go and talk to them. Not policing, but actually sensitizing them. See, you are here for a good cause, because meeting Shiva itself is, reaching salvation. सर, मैं तो चाहूँगा कि जो ऐसा सवार रहे हैं केदारनाथ जी को, तो थोड़ा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये भविष्य के लिए ज़रूर खतरा होगा, आज नहीं 20 साल बाद, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको शिफ्ट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, संवारना है, अच्छी बात है, उसके लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन इसको दूसरी तरफ किया जा सकता है। जब हम बोलते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया है, इसके जो पत्थर कटे वो भी तो यहाँ पीछे काट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं काटा। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पीछे आज भी ऐसे कटे हुए पत्थर मिलते हैं, उसकी चट्टानें हैं वहाँ, और कुछ अवशेष अभी भी पड़े हैं। क्या ये वहाँ से नहीं आ सकता है? उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के ही वहाँ काटा होगा।
तो थोड़ा सा ये चीज़ देखने, ये धार्मिक में भी और इन्वायरमेंट में भी, आधुनिक तौर में भी और पौराणिक उसमें भी बैलेंस चाहिए सर जी। अजेंद्र जय, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। मेरा जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचते हैं, पवित्र पावन धामों में पहुंचते हैं, तो आप उनकी पवित्रता को बनाए रखें, वहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका पालन करें। किसी प्रकार के ऐसी व्यवहार न करें कि जिससे कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो वहाँ का पर्यावरणीय जो उनके पहलू हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान हो, इस प्रकार का कोई अपने कार्य व्यवहार में न लाएं। और आप जानते हैं कि क्योंकि हमारे जो धाम हैं ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विकट हैं और यहाँ का पर्यावरण काफ़ी संवेदनशील भी है। तो इस पर्यावरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, यहाँ की पवित्रता पावनता को ध्यान में रखते हुए ही अपना यहाँ पर जो भी गतिविधि करते हैं उसको इसमें ध्यान रखें। और जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, पावन नदियाँ हैं, उनकी स्वच्छता को कायम रखें, ऐसा मेरा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है। The most challenging situation is for the streams flowing around in Himalayas, which because of the large pressure of the tourists are now getting blocked. The streams are getting blocked with plastic waste as well as other waste. The pollution caused in the Gangaji streams is to be tackled, and this is to be tackled by the community, the villagers. And we are moving in this direction since last 5 years and have succeeded in running a program specially for that purpose. And I wish we will get more volunteers, more full-timers for this purpose. Unless and until community comes up and spends time in Himalayas, the sustainability of the whole Ganga river is in jeopardy otherwise. So please join hands as volunteers, as full-timers, as well as please provide funds for running this successfully.